ایگریکلچر کے ایشوز سامنے آ جاتے ہیں، کبھی PI کا ایشو آ جاتا ہے، کبھی مزدوروں کا مسئلہ آ جاتا ہے، کبھی نیب کا مسئلہ آ جاتا ہے، اب نیب پنجاب میں آ جاتی ہے، وہ مسئلے آ جاتے ہیں. تو بہت سے ایشوز ریلیٹڈ آپ کو سوالات ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی بات کرنے کے بجائے آپ کو موقع دوں کہ آپ مجھ سے سوال کریں اور میں آپ کو اس کے لیے کوشش کروں کہ سیٹسفائی کروں. دیکھیں، کرپشن ہے یا نہیں ہے یہ مجھے پتہ نہیں ہے، مگر اس چیز سے محسوس ضرور ہوتا ہے کہ چھوٹے صوبوں میں جب نیب اور FIA کے الیکشنز ہوئے تو وفاق سے یہ آواز آئی اس پنجاب سے تو نیب کو اپنا کام کرنے دیا جائے، اور جو چیخ رہے ہیں ان کو اپنے آپ کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے. اور وہی بات جب پنجاب میں ہوئی اور 150 میگا جو کیسز تھے سپریم کورٹ میں گئے تو اسی پہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت دیش میں آ گئی اور بڑا پریشر بلڈ کیا. اس پریشر کا اثر تو یہ ضرور ہوا کہ تھوڑے وقت کے لیے بات رک گئی، پھر یہ بات اٹھی ہے، اور جب وہ پنجاب میں آئے ہیں تو آپ کے سامنے ہے کہ صوبائی حکومت کا اور صوبائی وزراء کا، وفاقی وزراء کا جو رویہ رہا، اس سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ بہت کچھ شاید اندر ہے اور وہ خوف میں بھی ہیں. اور 2-3 تو وزراء کی ٹیپس بھی آ گئی ریکارڈڈ، وہ بھی سامنے آ گئی، تو اندر سے کیا ہوگا اس وجہ سے وہ پریشان ہے. سوال ظاہر ہے کہ جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب خود حکومت آپ کو دے رہی ہے. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ صوبہ پنجاب کے جو کسٹوڈین ہیں میاں شہباز شریف، وہ کل مثلاً یہ کہہ چکے ہیں کہ مجھ پہ ایک ڈھیلے کا بھی کرپشن کا الزام ہو تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. تو بطور کسٹوڈین کیا یہ ان کا کہنا کافی ہے؟ کیونکہ اگر ان کے نیچے، اگر ان کے کابینہ کے کچھ لوگ کرپشن کرتے ہیں تو دیکھیں، چھوٹی سی ایک بات کہوں گا، ریفرنس دیکھیں کہ ماڈل ٹاؤن میں جب 15 کیجویلٹی ہوئے، بچے شہید ہوئے اور 80-90 کے قریب زخمی ہوئے، اس وقت بھی شہباز شریف نے کہا تھا کہ مجھ پہ اگر بات آ جائے تو میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں. جب پہلی انویسٹیگیشن ہوئی، سارا مبا ان کے اوپر آنے لگا تو وہ روک کے ایک نئی انویسٹیگیشن کی طرف چلے گئے جس کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے. یہ بھی وہی چیز ہے کہ نثار نے کہا کہ اگر FIA کے اوپر بنانے کے لیے بات کرے تو ہم بنانے کے لیے تیار ہیں. جب سندھ حکومت نے کہا ٹھیک ہے جی آپ بنائیں، تو انہوں نے کہا FIA پہ ہم کمیشن نہیں بنا سکیں گے. تو یہ بھی سمپل بات ہے، میرے اوپر آئے. اب ڈاکیومنٹس تو کسی کے پاس بھی نہیں ہوں گے، چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ یہ پروجیکٹس جو ہے، میگا پروجیکٹس جو ہیں وہ کیوں کر آ رہے ہیں، ان کی کاسٹ کتنی ہے. میں سمپل آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ 72 بسز ہیں اسلام آباد میں، اور ایک بس جو ہے 1 بلین کی کاسٹ کر رہی ہے. آپ کا جو اورنج ٹرین کا پروگرام ہے، اس کا بھی سامنے سارا ڈیٹا ہم نے بنایا ہوا ہے، دیکھ بس ریکارڈڈ کہ یہ 200 ارب کا پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں. ابھی ان لوگوں نے 160 کا کہا ہے، مگر اوریجنلی 200 بلین کا ہے. اس میں کافی چیزیں ابھی ان لوگوں نے ایز یوزول نہیں ڈالی ہے. ان کی ٹوٹل جو پیسنجر کو فیور ہوگی وہ 2.5 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے کیپیسٹی ٹوٹل، اور اس پہ 600 روپیز پر ہیڈ ایک خرچہ ہے، جس میں یہ 50 روپے رکھ رہے ہیں اور 50 روپے یہ سبسڈی دیں گے، جس کی کاسٹ 10 ارب کے قریب ہے. اتنا مہنگا پروجیکٹ جو فار ایور ان کے گلے میں پڑ جائے. میں وہ کاسٹ نہیں لگا رہا جو انویسٹمنٹ ہے، وہ کاسٹ لگے گی تو زیادہ ہو جائے گی، ان کا انٹرسٹ لگائیں گے تو زیادہ ہو جائے گی.
लेके आना तो उसके पीछे क्या है। पंजाब लाहौर की पॉपुलेशन तो 70 लाख है, तो आपको प्रोजेक्ट तो वो लेके आना चाहिए जो 70 लाख लोगों के फायदे में हो। और दूसरी बात, बिल्कुल ये वाज़ेह है कि पाकिस्तान पंजाब की जो प्रोविंशियल बजट है वो 400 अरब की है, कम से कम ऑरेंज ट्रेंड उसमें नहीं है। आप सवाल पूछते हैं, हम भी आप भी उनसे, कि उस 400 अरब की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है। साउदर्न पंजाब में 400 अरब में से कितना जाता है, और लाहौर एक शहर में, मैं और बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक शहर में उस बजट का कितना हिस्सा खर्च होता है। सारे लाहौर की जो बजट है साउदर्न पंजाब की बजट से 3 ज़्यादा है। तो इससे क्या मैसेज हम दे रहे हैं। तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये बात उस वक्त साबित हो जाएगी जब इन्वेस्टिगेशन होगी। और अब तो जब रोका जा रहा है तो इन्वेस्टिगेशन साबित भी नहीं होगी और फिर इस्तीफा भी नहीं देंगे लोग। साहब ये क्या वजह है, अपोजिशन लीडर आपको ज्यादा सख्त होगी कि तुर्की को ही ज्यादा क्यों ठेके दिए जाता है। यहाँ बेस मैनेजमेंट उनके पास है या पार्किंग उनके पास है, और अब तो टैक्सियां भी नहीं, मैं पहला जो आपने सवाल, ये चारों चीजें समझ गए। अच्छा, तुर्की को, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार भी हूँ, लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, हमारे एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है के साथ, चाइना के साथ। मैं और कुछ तो नहीं कह सकता, मगर इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि कुछ न कुछ तो ज़रूर होगा कि हम दुनिया में कहीं और न जाते, एक तरफ जाते हैं। अब जहाँ मैं आपको एक मिसाल दे दूँ, LNG है, 1700 बिलियन की डील है। ये डील 2 साल से 2.5 साल से चल रही है। उसमें हम पार्लियामेंट के अंदर हम चीख चीख के थक गए कि हमें बताओ क्या है। हमें नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया कि अगर अब हम बताएंगे तो इंटरनेशनल जो ऑयल प्रोसीडिंग कंट्रीज है वो अपने रेट ओपन कर देंगे। आज LNG की पोजीशन ये है दुनिया में कि सारे LNG प्रोड्यूस करने वाले जो मुल्क हैं वो परेशान खड़े हैं कि हमसे कोई ले, इस वजह से कि शेल जो है वो ओपन हो चुकी है। अमेरिका जो है वो 60% बायर था LNG का, और जापान भी 10 से 12% बायर था। जापान ने भी बंद किया बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक। अब दोनों ओपन हो गए, 72-75% मार्केट से बाय करने वाले LNG कंट्रीज दोनों हैं वो हट गए। अब जितने भी कम रेट पे हम कर सकते थे, एग्रीमेंट कर सकते थे, हो सकता था, और उसमें भी बातें सामने अभी आ रही हैं, लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है। अब क्या कोई किसी को हथौड़ा तो नहीं मारेगा, समझ में सबको आता है क्या हो रहा है। मुस्तफा कमाल साहब ने कमाल के इल्जाम लगाए अल्ताफ हुसैन पर। आप समझते हैं कि ये मुस्तफा कमाल अल्ताफ हुसैन पर इल्जाम लगा रहा है या जबान किसी की वार कोई कर रहा है और निशाना कोई और है? मैंने कल एक बात की है कि ओरिजिनली MQM जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की बेबी रही है, और ज़िया-उल-हक ने उसको पाल पोस के बड़ा किया है, और जब वो बालिग हो गई है, बड़ी हो गई है, तो अपने अपने उसने नखरे दिखाने शुरू कर दिए। तो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, पालते हैं, वो नाराज़ भी हो जाते हैं, थोड़े नाराज़ हो गए होंगे। वो तो होता है। अगर अकेला ही लगाता तो फायदा नहीं होता। कौन सा लोहा? अच्छा, लोहे पे जब बात आती है तो जहन कहीं और चला जाता है।
शायद वो लोग जिन्होंने नून लीग को वोट दिए थे अब वो हल्फ उठा रहे हैं कायदा उन्होंने नून लीग को कभी सपोर्ट नहीं करना। ऐसे में अपोजिशन जमातें कोई ग्रैंड अलायंस बना के हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक चलाने की पोजीशन में है या अभी सिर्फ फ्रेंडली? ये ग्रैंड अलायंस वक्त और हालात से बन जाते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि नहीं बनेंगे, बन जाते हैं। जब हालात ऐसे बनाए जाते हैं तो बन जाते हैं। जहाँ तक आप का सवाल है कि ये हमारे हुक्मरान जो है, शुरू में पता नहीं आपका एक सवाल था, लोड शेडिंग की बात करूंगा मैं, सॉरी। देखें, सिंपल मैथमेटिक्स में आपको बताऊं, शायद आप देखते भी होंगे, उस वक्त ध्यान नहीं जाता है, जब बात होती है तो फिर उस तरफ। पंजाब के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है, एक बहुत बड़ी, जो एग्रीकल्चर क्लास है उस पर नहीं सोच रहा, वो पता नहीं प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहा, कि जो चाइना के साथ हमारा एनर्जी एग्रीमेंट्स हो रहे हैं कोल प्रोजेक्ट्स पे, ये खास करके पंजाब के लिए जहर आलूद है आने वाले वक्त के लिए। हमारे 10-15 साल के अंदर जो एनवायरमेंटल चेंज होंगी और उसके बाद कोल प्रोजेक्ट भी आएंगे बाहर, तो पंजाब का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है बड़ा डैमेज होगा। जो कोल प्रोजेक्ट इस वक्त दिए जा रहे हैं वो 37% एफिशिएंट प्लांट है इस वक्त, उसकी कास्ट है पर मेगावाट $1.4 मिलियन। हाइडल पे अगर हम जाएं तो उसकी कास्ट भी यही है। फ़र्क यह है कि उसका कोल पे जो 37 है, जो नए कोल पे भी जो नए बाहर के प्लांट हैं इसी रेट पे मिल रहे हैं, उसकी एफिशिएंसी 52% है, मगर ये चाइना से लिए जा रहे हैं क्योंकि ये कर्जे पे मिल रहे हैं। कर्जे पे मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, इतना फ़र्क, ये वैसे आम मार्केट में जाओ तो 0.9 से ज़्यादा नहीं मिलेगा 37 एफिशिएंट वाला। तो ये कोल पे जा रहे हैं, सारे प्रोजेक्ट कोल पे आ रहे हैं। हाइडल पे जाए तो उनके लिए ज़रा मुश्किलात ही होती है, तो उनको छोड़ के जहाँ पे हाइडल पे हमारे पास कैपेसिटी इस वक्त 40,000 मेगावाट की मौजूद है। सुन लें मैं सुन, आप सुन तो लें, जज्बाती ना हो। हाइडल पे बतौर आपका मैं आपको जवाब देता हूँ कि इस वक्त हमारे पास 13-14 ऐसी पॉइंट है जहाँ पे ये काम शुरू हो सकता है। बादशाह डैम पे अच्छा हुआ मेरे साथ मट्टू साहब खड़े हैं, 2011 में हमने स्टार्ट दिया, 20 बिलियन फर्स्ट फेज में मिले, जो